ٹائمز میں خوش آمدید۔ پاکستان کا ایک اور خطرناک جاسوس آج پکڑا گیا ہے جو بھارتی سینا کی سیکرٹ انفارمیشن کو، خفیہ جانکاری کو پاکستان بھیج رہا تھا اور پاکستان سے پیسہ لے رہا تھا، لیکن اس خبر کا میڈیا میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے کیونکہ جو جاسوس پکڑا گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا نام عبد الرحمان نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے سمت کمار، اور اسی وجہ سے اس کے بارے میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اب کوئی مووی نہیں بنے گی، اس کا ISI سے لنک نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ نام ہے سمت کمار، اور جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بھارتی پولیس نے بھی کبھی اس پر الزام نہیں لگایا تھا کہ پاکستان سے اس کا تعلق تھا۔ اس شخص کا لنک اب ISI سے پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے اور اس کی موت کے بعد جوڑا جا رہا ہے، اس پر فلم بنائی جا رہی ہے، اس کی موت کو صحیح ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس شخص کا نام ہے عتیق احمد۔ عتیق احمد کی موت کو تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، بے دردی سے مارا گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اور اب باضابطہ فلم بنا کر عتیق احمد کی موت کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ آتنکوادی اور دہشت گرد عتیق احمد کو نہ مارتے تو اس دیش میں بہت بڑا بم دھماکہ ہو جاتا، یہ دیش دہل جاتا، 26/11 جیسا کوئی دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا۔ اس لیے عتیق احمد کو جن لوگوں نے آ کر مارا تھا، قتل کیا تھا، صحیح کیا تھا۔ عتیق احمد کے بارے میں جو فلم آئی ہے اس پر میں آگے بات چیت کروں گا، اس سے پہلے اس جاسوس کے بارے میں جان لیجئے۔ آسام کے ڈبرو گھر میں جو ایئر فورس اسٹیشن ہے وہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک شخص تعینات تھا، ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، جس کا نام ہے سمت کمار۔ یہ اتر پردیش کا رہنے والا تھا اور آسام ایئر فورس اسٹیشن میں یہ ملٹی ٹاسک آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور یہ وہاں کام کرتے ہوئے ایئر فورس کی جو خفیہ اور اہم ترین انفارمیشن ہے وہ ISI کو بھیج رہا تھا، پاکستان کو بھیج رہا تھا، وہاں سے پیسہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد پچھلے سالوں میں کئی سارے جو جاسوس پکڑے گئے ہیں، بھارت کی جو کئی ساری سیکرٹ انفارمیشن پاکستان کو پہنچی ہے، پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تب راجستھان کی انٹیلیجنس کو شک ہوتا ہے کہ ہماری سیکرٹ انفارمیشن، ہمارے میزائل کی معلومات، ہمارے بموں کی معلومات یا ہمارے جو فائٹر پلینس ہے اس کے بارے میں پاکستان کو کیسے جانکاری مل رہی ہے۔ تب راجستھان انٹیلیجنس نے انکوائری شروع کیا، تفتیش شروع کی۔ اس کے بعد ایئر فورس کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس نے اس انویسٹیگیشن کو جوائن کیا، اور دونوں نے آسام ایئر فورس اسٹیشن پر تعینات سمت کمار تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پھر یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، باضابطہ ثبوت ملا کہ کس طرح یہ تصویروں کو، پکچرز کو، جانکاری کو، اس کے علاوہ راجستھان میں جو بھارتی سینا کی نئی ایجادات ہوتی ہے یا بھارت کے ڈیفنس سیکٹر میں جو نئے ہتھیار آتے ہیں ان سب کی انفارمیشن یہ بھیج رہا تھا۔ اب اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس خبر کا میڈیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور پچھلے 1 سال میں یا کہہ لیجیے جب سے آپریشن سندور ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک تقریباً 50 سے زیادہ جاسوس پکڑے گئے ہیں، ISI کے بھارت میں ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، اور اس میں میجورٹی ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نام سمت کمار ہے یا کچھ اور ہے، اور میڈیا میں ایسی خبروں کو دبا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ان دنوں عتیق احمد کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے کہ عتیق احمد پاکستان سے ملے ہوئے تھے، عتیق احمد ISI کے ایجنٹ تھے، اور وہ بھارت میں دہشت گردانہ حملے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ابھی ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے دھرندر 2۔ دھرندر ایک فلم ریلیز ہو چکی اور پچھلے سال یہ فلم آئی تھی، اور اس فلم میں بھی مسلمانوں کو بدنام کیا گیا تھا۔ پاکستان کے نام پر مسلمانوں کا رشتہ اور تعلق جوڑا گیا تھا، دہشت گردی سے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرآن پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر حملہ کرتے ہیں، ہندوؤں کی جان لیتے ہیں۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور فلم آئی ہے، نام وہی ہے، آگے بڑھا دیا گیا ہے، دھرندر پارٹ 2، اور یہ جو مووی ہے تقریباً 4 گھنٹے کی ہے۔ اس مووی میں کئی ساری چیزوں کو دکھایا گیا ہے، میں نے اس فلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس فلم کا جو کچھ تبصرہ آیا ہے اس تبصرے کو میں نے پڑھا ہے، اور اس فلم میں سب سے زیادہ عتیق احمد کے خلاف بدزبانی کی گئی ہے، ان کے کردار کو وہاں پیش کیا گیا ہے۔ عتیق احمد کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے۔ عتیق احمد اتر پردیش کے الہ آباد کے رہنے والے تھے، 1 مرتبہ کے MP اور 5 مرتبہ کے MLA رہ چکے ہیں۔ دیش کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں سے ان کا تعلق تھا اور وہ سبھی کے لیے کام کرتے تھے۔ اس عتیق احمد پر الزام لگایا گیا غنڈہ گردی کا، لوگوں کی زمین چھیننے کا،
दूसरा मुकदमा उन पर आयद किया गया, जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद 15 अप्रैल 2023 रमज़ान का महीना था, अतीक अहमद को मीडिया के सामने पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया जाता है। और सिर्फ अतीक अहमद को नहीं बल्कि अतीक अहमद के साथ उनके भाई खालिद अशरफ को भी कत्ल कर दिया जाता है। उस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा कि तमाम टीवी चैनलों पर अतीक अहमद लाइव थे। वो अस्पताल से निकले थे, जेल जा रहे थे और मीडिया वालों ने उनको घेर लिया। वहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे मीडिया के एहलकारों से, तभी 2-3 वहाँ पर जो दहशतगर्द आतंकवादी थे, गुंडे थे, वो जर्नलिस्ट बनकर आते हैं। उनके हाथों में माइक होता है, अतीक अहमद के सामने वो अपना माइक लगाते हैं। अतीक अहमद उधर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, तमाम टीवी चैनलों पर लाइव नशर किया जा रहा है। उसी दौरान वो जर्नलिस्ट अपनी जेब से रिवाल्वर निकालता है और सीधे नज़दीक से अतीक अहमद पर फायर करता है। उसके बाद उनके भाई खालिद पर हमला किया जाता है, उन पर फायर किया जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। यूपी पुलिस ना तो उन लोगों से बंदूक छीनने की कोशिश करती है, ना उनको पीछे हटाती है और लाइव कत्ल का मंजरनामा पूरी दुनिया देखती है। उसके बाद फौरी तौर पर उन लोगों ने सरेंडर भी कर दिया और कहा कि मैंने क्यों अतीक अहमद को मारा है। गिरफ्तार किया जाता है और धीरे धीरे केस उनका हटाया जा रहा है। अब अतीक अहमद का जो केस था, इंक्वायरी की मांग हो रही थी, मुतालबा हो रहा था कि कैसे इन लोगों ने कत्ल किया, क्या पुलिस मुलविस थी, सरकार मुलविस है। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जाँच नहीं हुई। अब इस धुरंधर मूवी में अतीक अहमद के कत्ल को सही ठहराया गया कि अतीक अहमद का जो कत्ल हुआ है सही हुआ है। अगर अतीक अहमद का कत्ल नहीं होता तो 26/11 की तरह हिंदुस्तान में कोई बड़ा दहशत गर्दाना हमला हो सकता था। अब इस धुरंधर मूवी पार्ट 2 में तकरीबन 3 मरतबा अतीक अहमद की एंट्री होती है और अतीक अहमद का जो किरदार यहाँ पर अदा कर रहा है, आतिफ अहमद नाम का एक अदाकार अदा कर रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिससे साफ पता चलेगा कि आतिफ अहमद का ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, इसकी जो शक्ल है वो अतीक अहमद के किरदार को पेश कर रही है या किसी और के किरदार को पेश कर रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये अतीक अहमद की रियल इमेज है, ओरिजिनल तस्वीर है। और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, इस पर आतिफ अहमद लिखा हुआ है और इसकी जो शक्ल सूरत बनाई गई है, इसकी जो इमेज बनाई गई है, बिल्कुल अतीक अहमद जैसी। अब इस फिल्म में अतीक अहमद पर पहला इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि अतीक अहमद ड्रग्स के कारोबार में मुलव्विस है, वो लोगों की ज़मीनें छीनता है, वो गुंडागर्दी करता है। पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला जाता है, वो अपने गुंडागर्दी के कारोबार को आगे बढ़ाता है और पुलिस की वो नहीं सुनता है। दूसरा किरदार अतीक अहमद के दिखाया गया कि आतिफ अहमद, जो दरअसल अतीक अहमद की जगह अदाकारी कर रहा है, वो नेपाल और पंजाब के रास्ते से ड्रग्स और हथियारों की भारत में सप्लाई करता है। यानी आतिफ अहमद हथियार पाकिस्तान से लेकर भारत में सप्लाई कर रहा है या नेपाल के रास्ते से हथियारों की सप्लाई हो रही है और अतीक अहमद के पूरे ग्रुप्स तक, पूरे गैंग तक इसको पहुंचाया जा रहा है। और ये जो सीन है जो दिखाया गया है उसको आप देखिए, पहली तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद अपने भाई के साथ बैठा हुआ है और ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। और उसके बाद आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर इस धुरंधर पार्ट 2 मूवी की है जो आतिफ अहमद की तस्वीर बताई गई है और इसमें यही बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स का कारोबार करता है, पाकिस्तान से पैसे लाता है, यहाँ वो सबको फराहम कर रहा है। और यूपी पुलिस ने बाज़ाब्ता इस केस का तज़किरा भी किया है अपनी चार्जशीट में, लेकिन कहीं इस बात का सबूत नहीं है यूपी पुलिस की चार्जशीट में कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से कोई लिंक था या अतीक अहमद ने पाकिस्तान से कोई पैसा लिया था या वहाँ से अतीक अहमद हथियारों की सप्लाई करता था या फिर ड्रग्स की सप्लाई करता था। मीडिया ने ज़रूर 1-2 मरतबा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन न तो पुलिस की चार्जशीट में उसका तज़किरा है और न लोकल अदालत में इसको किसी ने साबित किया। और भास्कर अंग्रेज़ी की वेबसाइट पर एक स्टोरी की गई है इस मूवी में जो क्लेम किया गया है और जो रियलिटी है उस पर कि रियलिटी क्या है और क्लेम क्या है। अब क्लेम यह किया गया 2015-16 के बारे में कि अतीक अहमद ड्रग्स और वेपन्स की असेंबलिंग कर रहा था पाकिस्तान से। रियलिटी में ऐसा अतीक अहमद पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, न कोर्ट में ऐसा कोई सबूत पेश किया जा सका। अब जो तीसरा सीन है धुरंधर मूवी का वो सबसे ज़्यादा अहम है। तीसरे सीन में दिखाया जाता है कि अतीक अहमद का सीधे सीधे ताल्लुक़ पाकिस्तान की ISI से है, पाकिस्तान की
खुफिया एजेंसी और आर्मी से है और अतीक अहमद को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उसे भारत में कोई बड़ा हमला करना है, कोई दहशतगर्दाना अटैक करना है। उसके अलावा लश्कर तैयबा की तरफ से बाज़ाब्ता उसको आदेश मिलता है। पूरे गैंग से अतीक अहमद का ताल्लुक़ है और जब अतीक अहमद अचानक पूरा हमला करने वाला था, प्लान करने वाला था, तभी जर्नलिस्ट की शक्ल में दो चार गुंडे आते हैं, अतीक अहमद को मार देते हैं। और अतीक अहमद को यहाँ पर मारना ज़रूरी था, यानी आतिफ अहमद को जो फिल्म में दिखाया गया है कि अगर आतिफ अहमद को ना मारा जाता तो आतिफ अहमद देश में कोई बड़ा धमाका कर देता, देश तबाह बर्बाद होता। इसलिए गुंडों ने आतिफ अहमद को जो मारा सही किया, ये दिखाया गया इस मूवी में। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, ये ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद जर्नलिस्ट से, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। 15 अप्रैल 2023 को रमज़ान का महीना था और ये फिल्म की तस्वीर है जिसमें आतिफ अहमद मीडिया से बातचीत कर रहा है। बस कैमरे का फ़र्क है और माइक का फ़र्क है। जो ओरिजिनल तस्वीर है वहाँ आपको पीटीआई का माइक दिखेगा, आज तक का माइक दिखेगा, लेकिन जो मूवी की तस्वीर है, मूवी का जो स्क्रीनशॉट है, उसमें पीटीआई और आज तक की जगह कुछ दूसरे फर्जी चैनल्स के माइक दिख रहे हैं, लेकिन वही शक्ल क्रिएट की गई है। अब रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो जान लीजिए। और दैनिक भास्कर ने बाज़ाब्ता अपनी वेबसाइट पर स्टोरी शाये की जिसमें बताया गया कि फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि अतीक अहमद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अतीक अहमद को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो इस मंजरनामा को इलियास कश्मीरी जो आईएसआई ऑफिसर है पाकिस्तान का, वो लाइव देख रहा था। उसी तरह मेजर इकबाल भी लाइव देख रहा था और इन दोनों से ही अतीक अहमद कांटेक्ट में था, ताल्लुक़ में था। अब इलियास कश्मीरी ने और मेजर इकबाल ने लाइव मंजरनामा देखा कि अतीक अहमद को मार दिया गया है, उसके भाई को मार दिया गया है। जो एजेंडा था आईएसआई का वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर इलियास कश्मीरी ने और मेजर इकबाल ने अफसोस का इजहार किया। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो इलियास कश्मीरी है, जिसको आईएसआई का ऑफिसर बताया जा रहा है, ये 2023 में ज़िंदा ही नहीं था। 2011 में अमेरिका ने अपने एक ऑपरेशन के दौरान ड्रोन अटैक के ज़रिए इसको कत्ल कर दिया था, मार दिया था। तो इलियास कश्मीरी का कत्ल अमेरिका के ऑपरेशन में साल 2011 में ही हो चुका है और धुरंधर मूवी में दावा किया जा रहा है कि 2023 में इलियास कश्मीरी ज़िंदा था, आईएसआई का ऑफिसर है और वो अतीक अहमद की पूरी एक्टिविटी को देख रहा है। और यहीं से बात साबित हो जाती है कि रियलिटी कुछ और है और मूवी में कुछ और दिखाया जा रहा है और मकसद है अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी छवि को ख़राब करना और जस्टिफाई करना कि उसका मर्डर, उसका कत्ल सही हुआ था क्योंकि वो लश्कर तैयबा का दहशतगर्द था। तकरीबन 4 घंटे की इस मूवी में यही साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था, लश्कर तैयबा का दहशतगर्द था और वह हिंदुस्तान के लिए ख़तरा था। लेकिन अतीक अहमद का जो पूरा केस है, पुलिस के यहाँ, प्रशासन के यहाँ, कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है कि कभी कोई इल्ज़ाम लगा हो या कोई ताल्लुक़ रहा हो। पुलिस की डायरी को खंगालने के बाद या पुलिस स्टेशन की जो फाइल है उसको खंगालने के बाद एक छोटा सा सुराग मिलता है, लेकिन उस सुराग का पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है कि ये साबित कर दिया जाए कि खालिद या अतीक अहमद का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ था या इन दोनों ने कभी भी पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खालिद अशरफ जो अतीक अहमद के छोटे भाई थे, उसके बारे में ये बताया गया कि खालिद अशरफ के ग्रुप का एक बंदा था ज़ीशान, और वो एक मरतबा पाकिस्तान जा चुका था। उसके बाद उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और जब उसने दोबारा पासपोर्ट बनाने की कोशिश की, रिन्यूअल के लिए उसने एप्लीकेशन दिया तो उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। तब खालिद अशरफ ने पासपोर्ट ऑफिस का नाम एक लेटर लिखा, सिफारिश की और कहा कि ज़ीशान को बाहर का सफ़र करना पड़ता है, इसे बाहर जाना पड़ता है, इसलिए उसके पासपोर्ट को री इशू कर दिया जाए बग़ैर किसी ताख़िर के। आप ये लेटर देख सकते हैं, ये लेटर दैनिक भास्कर ने ही शाये किया है। अब इस लेटर की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि खालिद अशरफ का करीबी था ज़ीशान, वो पाकिस्तान गया और फिर उसका पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की सिफारिश की खालिद अशरफ ने। इसका मतलब खालिद अशरफ का पाकिस्तान से ताल्लुक़ था और खालिद अशरफ भाई है अतीक अहमद का। इसका मतलब अतीक अहमद असम्बलिंग कर रहा था, हथियारों की सप्लाई कर रहा था, पैसों की सप्लाई कर रहा था, ड्रग्स ला रहा था, फिर वो लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा था। कहाँ से कहाँ तक कड़ी को जोड़ दिया गया और जो सच में आईएसआई के एजेंट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता, उन पर फिल्म नहीं बनाई जाती है। इस पूरी मूवी में
डीजीपी प्रशांत कुमार का किरदार भी अदा किया गया है। आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, प्रशांत कुमार हैं जो साल 2023 में उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे और इन्होंने ही मीडिया में आकर के ब्रीफिंग की थी इस पूरे मामले पर। अब इनका किरदार भी एक ने अदा किया जिसको आप देख सकते हैं, ये भी उसी जैसी तस्वीर है और ये आकर के मीडिया में ब्रीफिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या अतीक अहमद ने किया है। तो ये रियलिटी है और मूवी के ज़रिए अब जो मर्डर है, जो दहशतगर्दी का केस है, उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है और लोगों का ब्रेन वाश किया जा रहा है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो गुंडागर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है या जो इनकाउंटर हो रहा है तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और जो सही में देश के लिए दुश्मन है, देश के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उन खबरों को छुपा दिया जाता है। इससे पहले ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और ये ताज़ा मामला है। अतीक अहमद की रूह इस बात पर अफसोस कर रही होगी कि हमारी ज़िंदगी में हम पर किसी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, आईएसआई के एजेंट हो, लेकिन मरने के बाद भी हमारे मुक़द्दर में यह था कि हमें पाकिस्तानी एजेंट कहा जाएगा, आईएसआई का एजेंट कहा जाएगा। और बेशर्मी की हद देखिए कि अतीक अहमद जैसे लीडर पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। आम लोगों पर तो इल्ज़ाम लगाया ही जाता है। पिछले दिनों अजीत डोवाल की एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी और बाज़ाब्ता उन्होंने इतराफ़ किया था कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मुसलमान ज़्यादा नहीं होते बल्कि हिंदू ज़्यादा होते हैं। अजीत डोवाल कौन है उसे जान लीजिए। अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और रॉ के चीफ रह चुके हैं। कई अहम तरीन जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया है। उन्हें पता है कौन किसके लिए जासूसी करता है, नहीं करता है। ख़ुद पाकिस्तान लंबे अरसे तक रह चुके हैं और आईएसआई को उन्होंने किस तरह दबाया, कमज़ोर किया, उनका एक पूरा रिकॉर्ड है। और एक शानदार ऑफिसर के तौर पर हमेशा अजीत डोवाल को याद किया जाता है। उनका बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, आईएसआई के लिए काम करने वाले, देश का सौदा करने वाले 80% से ज़्यादा हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते। मुसलमान ज़मीर का सौदा नहीं करते हैं, लेकिन फ़िल्मों में सिर्फ मुसलमानों को विलन बनाया जा रहा है और अब एमपी को भी बदनाम किया जा रहा है। कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मेरे फ़ोन को भी सुना जाता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन मैं सच्चा देशभक्त हूँ। जो बड़े लीडर्स हैं, जो एमएलए और एमपी रह चुके हैं, अगर उनको उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तानी एजेंट नहीं करार दिया जाता है, क्योंकि अगर करार दिया जाएगा तो सबूत पेश करना होगा और सबूत आप पेश नहीं कर सकते, फिल्में बैन हो सकती है, मुकदमा दायर होगा, तो अब उनकी मौत के बाद उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धुरंधर मूवी को मैं कोशिश करूंगा देखने की और पूरा तबसरा इसके बारे में करूंगा कि इस मूवी में किस तरह इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया गया है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तबसरा कीजिए। ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए या मिलर टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए, नीचे लिंक मौजूद है, और मिलर टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिसके ज़रिए मज़ीद बहुत सारा बेनिफिट और फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।